हाय व्हाट्सअप ट्राई सिटी, आप सुन रहे हो ट्राई सिटी का नंबर 1 कम्युनिटी रेडियो 107.8 एफएम देशभक्त रेडियो, आपकी आवाज। शो शुरू हो चुका है आपका फेवरेट ग्लोबल लोकल वोकल। आई एम योर आरजे प्रीतो, मेरे साथ है आरजे किंग और हम दोनों के साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ऋचा राठी, एडिशनल कमिश्नर एमसी पंचकुला। सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच फाइनली टाइम देने के लिए, फाइनली आने के लिए। अच्छा, लिसनर्स को शायद नहीं पता होगा लेकिन हम इस इंटरव्यू को कब से प्लान कर रहे थे। आई थिंक फ्रॉम एजेस वी आर प्लानिंग फॉर दिस इंटरव्यू और आज फाइनली मैम आप हमारे साथ स्टूडियो में हो। Right, Preeto. For some reasons it got delayed, but finally I'm here. Thank you so much for coming. I understand मैम, इतना आपका बिजी वर्क शेड्यूल रहता है एंड फिर भी आपने आज टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much for calling. सो मैम पहला सवाल तो पहला सवाल ये है कि आज जिस पोजीशन पे आप हो, जिस कुर्सी पे आप बैठते हो, आई एम श्योर बहुत मेहनत लगी है पहुंचने के लिए, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगा है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? मतलब ऑफकोर्स बचपन से तो नहीं पता था ना कि ये होने वाला है, तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे चीजें प्लेस में जाती रही? I was born in a very small town of Haryana, that is Nirvana. Oh. And there my father was in also a government job, so he got transferred to Hisar. So I think that was the best part. We got into a bigger city. So all my studies, everything, I was brought up in Hisar till my marriage. Then I got married to a person who is also a government officer and was posted at Panchkula. Yeah. So that's how I moved to Panchkula. मतलब रब ने बना दी जोड़ी एंड पंचकुला गॉट यू। I got Panchkula. ओके, सो बात करें स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग में कैसे थे आप? मतलब पढ़ाकू टाइप तो आई एम श्योर रहे होगे कि आपका ध्यान बहुत ज्यादा पढ़ाई में रहता होगा। Actually मुझे सिर्फ पढ़ाई ही आती थी। Oh. I was very bad in the co-curricular activities. I was not a good dancer, singer or whatever. जो बाकी सारी जो भी एक्टिविटीज स्कूल में होती थी, I was at a very backbencher types. But जहाँ भी academics की बात आती थी तो I was doing fairly well. So that was my passion also, and my hobby was also reading always, and today also I love to read books. अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप क्लास के मॉनिटर थे। I had been monitor as well as I was also the head girl of the school. ओह, देखा मेरा गेस सही था। मैम, और आपने टीचर भी रहे हो, मतलब आपकी टीचिंग की जर्नी कैसे रही? आपने टीचर बनने का कैसे सोचा? Yeah, था माइंड में? because इससे पहले जो मेरा करियर था, that was I was a college professor. Yeah. And I've taught for 13 years before Wow. coming into Haryana Civil Services. I've mostly my journey started from Hisar only. I taught in FC College for Women at Hisar. Then I've taught in MCMDAV College Chandigarh, Government College for Men Chandigarh, Kalka and Panchkula government colleges. And in 2013, like after 13 years of service, I started teaching in 2001. Yeah. And in 2013, by God's grace, I got selected into Haryana Civil Services. So good. अच्छा, how was the teaching experience went? Like कैसा था, कितना मजा आया पढ़ाने में? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, because now I can compare, teaching is actually a noble profession. Yeah. Because you never know when you are teaching for 50 minutes in a class, and you never know when somebody is hit by your words or motivation. Actually, yes. Or you tell so many other things also to children. At least I used to. It was not just about the curriculum. I used to teach commerce. So commerce itself doesn't have much life sharing experiences as such. नहीं है, वो sociology नहीं है, वो history नहीं है, वो हिंदी लिटरेचर नहीं है, वो इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, बट इट्स मोर ऑफ इनटू नंबर्स एंड अकाउंटिंग। सो लेकिन मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट ज़रूर निकालती थी अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना या उनकी प्रॉब्लम्स, अपनी challenges को डिस्कस करना, and by that time I used to guide them. They used to come also sometimes. Students also seek motivation from you, and they used to ask me also. तो मुझे नहीं पता चला कि मैंने कब किस बच्चे को एक कुछ ऐसा बोल दिया जो उसको इतना हिट कर गया कि उसने फिर उसको इम्बाइब करके, और now there are few children who really meet me and they tell me कि मैम आपने उस दिन उस क्लास में जब ये बोला था तो हमें ऐसा लगा था कि yes we should concentrate. There is, for example, there was one boy in Government College for Men who was not very serious in studies, and one day I just called him and I asked, see, you seem to be a very belonging to a very good family. तो तुम सब कुछ भगवान ने दिया है, क्यों नहीं अच्छी पढ़ाई करते हो, so that you have a good life ahead also. ना आप अपने फादर के दम पर इतना अच्छा लाइफ नहीं लीड कर पाओगे. सो इट वाज जस्ट अ पासिंग 2 minutes डिस्कशन, एंड after a long time I met this boy. He is now settled in US after he did MBA from some nice institute, and then he told me कि मैम आपने उस दिन मुझे बोला था ना, मैंने बहुत सोचा घर जाके, and thereafter I really worked hard. I knew he got good grades in the college, but then
उसकी बाद की जर्नी मुझे नहीं पता थी. So teaching that way give you that platform. और अब जब ऐसे बच्चे आपके पास आते हैं जिनको आपने बहुत सालों पहले पढ़ाया, कितना प्राउड मोमेंट होता होगा ना. आई डोंट थिंक कि आप सबको जानते भी होगे बाय फेस, क्योंकि आपने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा. आई थिंक ये टीचर्स का रिलेटेबल होता है. गोल्डन वर्ड्स जो होते हैं ना मैम वो आगे फिर एक्चुअली क्या है कि पर फिर भी स्टिल इन योर मेमोरी देयर आर सम स्टूडेंट्स. जैसे टीचर्स तो सभी बच्चों के माइंड में रहते हैं, बट देन हमारे माइंड में भी कुछ ऐसे बच्चे इंप्रेशन छोड़ जाते हैं. एंड इट्स नॉट वन वे. वी ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स. समटाइम्स वी ऑल्सो इम्बाइब सो मेनी थिंग्स विच दे डू नॉट नो. एग्जैक्टली. तो मैम आपसे ये जानना चाहूंगा कि मतलब आप इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए हो तो वो क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपके पास? I believe challenges are there in every job. और since we deal with grassroots people और जो common men हैं हम उनके साथ डील कर रहे होते हैं, so थोड़े challenges हमारे unseen आते हैं. Like we were repairing roads and recarpeting and हम कर रहे होते हैं, and suddenly then flood comes. Nobody could foresee कि ऐसे पंचकुला में ऐसे floods आ जाएंगे कि एक हबल गार्डन will wash out और ऐसे bridge जो है टूट जाएगा और लोगों के मतलब I mean the people will be so badly affected with floods. Though I think we have done very fairly well as compared to our neighboring cities. This time we have really managed well. But ये कुछ unforeseen challenges होते हैं. MC also works for like dog sterilization programs and all. यहाँ पर भी हमारे पास challenge आता है. Then we have a section of society who's a dog lover. Then we have a section of the society who is dog hater, and then we are in between. So these type of challenges are always there in the job, and especially working as an additional commissioner to Corporation Panchkula. Talking about the flood scene, अभी recently पूरे ट्राई सिटी ने देखा कि कैसे ट्राई सिटी ऑलमोस्ट डूबने वाला था, बट देन पंचकुला में हुआ मिरेकल. घग्गर है वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं रेड अलर्ट था वहाँ पे, बट स्टिल पंचकुला ने बहुत अच्छे से मैनेज किया. आई टेल यू व्हाट, मैं खुद डेराबस्सी से आती हूँ एंड आई प्रेफर पंचकुला वाला रूट बिकॉज दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर पीपल. अगर हम चंडीगढ़ वाले रास्ते से आते हैं, हम जीरकपुर क्रॉस करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे पोर्ट होल्स मिल जाएंगे, बट वहीं अगर आप पंचकुला की साइड से आओगे तो वहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगी, बड़ी रोड्स हैं और एक सेफ ट्रांसपोर्टेशन आपको हो जाता है. सो हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल दिस कि डेराबस्सी वाले लोग भी पंचकुला से प्रेफर करते हैं भैया? Thank you so much, Peter. This is a big compliment for whole Panchkula administration, including MC. See, for this season, I would like to tell you, in the month of May itself, we had made a rapid task force for managing the floods and the waterlogging issues. हमने पहले से ही preparations कर ली थी, and every challenge, every problem can be overcome if we plan ahead of it. So इस बार हमारे पास we were ready with the people. They were explained their duties. हमने उनको बिल्कुल कैटेगरिकली बता रखा था कि अगर बारिश तेज आती है, अगर पानी ज़्यादा भरता है तो आपने क्या करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है. So that response team, then we also issued a helpline number which also helped us know exactly where the problem is occurring. And so हमारी जो rapid task force जो टीम थी वो वहाँ पर रश कर सके और अपने जो measures हैं, rescue measures हैं, वो एकदम से ले सके. इवन डिप्टी कमिश्नर पंचकुला जो कि मतलब वैसे वो एक रूटीन है, होता ही है हमेशा, बट देन एक बहुत अच्छी सी प्री इंटर डिपार्टमेंटल एक मीटिंग हो गई थी जिसमें ये डिसाइड कर लिया गया था कि इफ रेन्स आर मोर व्हाट which department will do what, and mainly the onus lies on either HSVP or municipal corporation. And we were so prepared, so that is why I think we could do fairly well. Actually, this preparation is only making Panchkula a very planned city, a very green city, a very smart city, I guess. See, I can tell you about municipal corporation. I joined this office in month of February, and this is my first time I'm serving there, and I've seen we are actually striving to make Panchkula cleaner, greener, and pothole free, and plastic free, and there are many points. Even there are, you must have heard about Saat Sarokar of Panchkula, which has been given by our honorable speaker, who also happens to be MLA from Panchkula. तो वो कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और हम लोगों के लिए मतलब हर महीने टास्क रहते हैं, एंड वी ऑल वर्क हार्ड टू स्ट्राइव दैट. तो मैं जानना चाहूँगा कि मतलब इतनी जो आपकी स्ट्रेस वाली जॉब है तो आप अपना स्ट्रेस रिलीव कैसे करते हो?
See, the best stress buster for me is spending time with my son, who is just about to be 9 in September. So is spending time with him, talking to him, listening to his school experience, the day he spent at school, उसकी बातें सुनना, innocent से definitely he's young अभी, और उसके साथ गेम्स खेलना, spending time with my husband, and since he's also into Haryana government, so हम दोनों अपनी ऑफिस आवर्स को डिस्कस करके एंड वी जस्ट लेट इट आउट. अच्छा, ऐसा कभी होता है, क्योंकि आपने बताया जैसे सर भी सिविल सर्विसेज में है, तो ऐसा कभी होता है कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही हो काम के बारे में और वो हीटेड आर्गुमेंट हो गई हो कि तुम ऐसे मेरे काम के बीच में कैसे बोल सकते हो समथिंग? आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ एवरी मैरिड लाइफ. हमारा प्रोफेशन के बारे में वो होता है कई बार, बट देन इट्स लाइक वी ऑलवेज एंड अप सेइंग, सी आई हैव told you my opinion, now it's your call. This is what he tells me and this is what I tell him. इसमें भी हम काफी रिलीफ मिलता है जब हम लड़ाई होती है तब भी रिलीफ होता है क्या? लड़ाई का टाइम नहीं मिलता है actually बहुत ज़्यादा. So थोड़ा सा मतलब we are both are very busy and end up coming home late. So इतना टाइम मिल नहीं पाता है, लड़ाई तो हो नहीं पा रही है ज़्यादा. And then I love reading and then listening to music. So बहुत सारे पैशंस हैं. अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर फैमिली मैम, आप जिस पोजीशन पे अभी हो, एक्चुअली बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट लगता है फैमिली का, एंड हस्बैंड तो बाद में पिक्चर में आते हैं. फर्स्ट इट्स अबाउट योर फादर एंड योर मदर. तो कैसा सपोर्ट था बचपन से? एक्चुअली व्हाटएवर आई एम टुडे, फाउंडेशन तो उन्हीं की रखी हुई है. एंड माय फादर ऑलवेज टोल्ड मी कि यू हैव टू वर्क हार्ड इन लाइफ. And my mother, she always wanted, we are 3 sisters, and she always wanted us to be financially independent. And by God's grace, we all 3 are working. And मेरी दोनों बहनें जो हैं वो कॉलेज प्रोफेसर हैं. And prior to this service, I was also. So we all are financially independent, and this was a dream of my mom. अच्छा, कहते हैं ना कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और व्हेन औरत कामयाब है तो उसके पीछे कहते हैं कि एक मर्द का हाथ होता है, पर हमेशा वो मर्द हस्बैंड नहीं होता, वो फादर भी होते हैं. हाँ, बट इस केस में सी आई हैव डन, मतलब मैं 2 प्रोफेशन से गुजरी हूँ. तो फर्स्ट प्रोफेशन डेफिनेटली मेरे फादर की देन था. और क्योंकि आई गॉट मैरिड इन 2005 एंड आई बिकेम एन एचएस ऑफिसर इन 2013. तो इसके पीछे सारी की सारी मोटिवेशन मेरे हस्बैंड की थी. ही आल्सो इज एन एचसीएस अलाइड ऑफिसर ऑफ 2003 बैच. सो वन डे ही जस्ट टोल्ड मी कि तुम अच्छी हो पढ़ाई में एंड यू आर डूइंग वेल एंड यू गॉट गुड मार्क्स एंड एवरीथिंग, व्हाई डोंट यू प्रिपेयर, एचसीएस के फॉर्म निकले तो व्हाई डोंट यू अप्लाई. एंड आई वाज लाइक नो, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट एट दिस स्टेज. After working for 7-8 years, will I be able to 10 years? I'll be able to do it. And he said, why not? You just try. And then rest is history. आपने काफी एग्जाम्स दिए होंगे. See, मैं ये नहीं कहूँगी, though this is my 4th regular job. God has been kind that way. But कोई भी job मुझे ऐसे platter में नहीं मिली है. I have really worked hard for each one of it. और काफी मेहनत तो की है. Yes, I'm also a gold medalist, university gold medalist. Wow. So acquiring all these qualifications, that takes your hard work. मैम, आज के टाइम में ना एजुकेटेड वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या बोलोगे? जैसे कि जब लेडीज हैं जो अच्छी एजुकेशन वो ले लेती हैं, अगर मैं प्रीतो से भी पूछूं तो, है ना, तो प्रीतो ने भी अपना करियर का भी स्टार्ट किया है और मतलब काफ़ी अच्छा जा रही है. अगर अपनी बात करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है कि प्रीतो के साथ रहना, बात करना और बातें सुनना. और मैम, आप भी एक इंस्पिरेशन बनी रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो एम्पावरमेंट की डेफिनेशन बहुत अलग है किंग. मैं ये बिलीव करती हूँ कि व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न, शी इज ऑलरेडी एम्पावर्ड, बिकॉज एज स्टडीज सेज कि जो सर्वाइवल रेट है वो गर्ल चाइल्ड का इट्स मच मोर हायर देन द मेल चाइल्ड. तो एक तरह से भगवान ने हमें एम्पावर्ड ही भेजा था. प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन शी स्टार्ट्स ग्रोइंग अप. फिर वहाँ पर जैसे जैसे वो बड़ी होने लगती है सोसाइटी में, शी इज़ बीइंग told to behave and live as a, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे restrictions लगने लगती हैं. This is not the way to talk. You should not speak loudly. You should not walk like that. You should not sit like that. You should not do this and that. तब वहाँ पर वो जो what I will say कि वो empowerment कम होने लगती है, which we were born with. और धीरे 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 फिर हमारी सोसाइटी की नज़र में जो भी लेडी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लेडी है who has a career is considered to be empowered. I don't believe that. Empowerment can be anywhere in any terms.
Even I know so many of my known friends and colleagues who are financially independent, who are very well qualified and at a very high position, but even they are facing so many issues in life. ठीक है, physically abuse उनको नहीं कर पाते होंगे उनके घर वाले और husbands और whatever, but then emotional और mental abuse बहुत है families में. मैम टॉर्चर्स भी काफ़ी हैं. हाँ, टॉर्चर्स भी काफ़ी हैं. इट्स सो ठीक है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो, सो इन अ वे you have the opportunity if to be separate or something, but then कितनी लड़कियां वो प्लंज ले पाती हैं? एब्सोल्युटली. अकॉर्डिंग टू मी आई गेस कि जो एम्पावरमेंट है ना, वो आती है आपके कॉन्फिडेंस से. हाउ कॉन्फिडेंट यू How आर. confident you are and how you are. You should be naturally what you are. या दैट्स You राइट. know, many a times we, all women, like we have to behave in a certain way, which is not a natural way. So that is not empowerment. Yeah. So empowerment का मतलब जो है कि ये लिया जाता है कि सिर्फ आप कमा रहे हो और आप इसलिए आप नौकरी कर रहे हो तो आप empowered हो. No. ऐसा नहीं है. In fact, I would say कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हैं वो औरतें जो बाहर जा रही हैं. They sometimes are having more challenging lifestyle than their homemaker counterparts have. Yeah, absolutely. Because they are not relieved from their household जो भी उनकी responsibilities हैं, responsibilities towards in-laws, families, everything. मतलब they are doing everything. Yeah. They are working also. They are not seen as a बहू और लेडी, बट देन दे आर सीन एज एन ऑफिसर जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी. घर आते ही वो प्रीतो, यू वुड अग्री विद मी, फ्रॉम द राइट फ्रॉम द मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप, हम कितने रोल्स में आते हैं. अर्ली मॉर्निंग व्हेन वी आर मेकिंग अ चाइल्ड रेडी फॉर स्कूल, वी आर प्योरली बिल्कुल मदर हैं. हम उसको तैयार कर रहे हैं, हम उसके लिए टिफिन पैक कर रहे हैं, एंड वी आर देन वी गो टू ऑफिसेज एंड अपने वर्क प्लेस पे हम जा रहे हैं, वहाँ पर हम एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन जिसमें भी हम वो रोल प्ले कर रहे हैं. देन वी रश बैक होम इन द इवनिंग, देन वी हैव टू लुक आफ्टर husband also is come from office and हमें वो भी ध्यान रखना है. then again we have to look after, we are teacher also as बच्चा, क्योंकि उसको फिर हमने पढ़ाना भी है. फिर मतलब एक in-laws अगर बीमार हैं या कुछ है तो उनकी भी look after करनी है. we have to take them to hospitals etc. whatever, मतलब जो भी जिसका जैसा भी lifestyle है, जिसके जैसे भी family circumstances हैं, तो it is not easy. you are changing so many I would say कितने चोले आप उतार रहे हो और पहन रहे हो एक ही दिन में, बट एज कम्पेयर टू आवर मेल काउंटरपार्ट्स. तो मैम वर्क लाइफ के बारे में बात कर ली, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर ली. अब बात करते हैं आपके बारे में, आपकी हॉबीज के बारे में. आई नो जो आपका वर्क शेड्यूल रहता है वो बहुत ही हैक्टिक रहता होगा, एंड यहाँ पे स्ट्रेस बस्टर आ जाता है आपकी हॉबीज जो आपको करना पसंद है. लाइक कहते हैं ना कि हॉबी एक ऐसी चीज होती है जो आपको बार बार रिमाइंड कराती रहती है दैट यू आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ, और सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा है. तो इन दैट सेंस तो वो कौन सी एक हॉबी है जो आपको करना बहुत ज्यादा पसंद है? Preeto, best is I love to read books. Yeah. And then second one is I must say gardening, cooking and listening to music. अच्छा, मैं बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, एक कोई फेवरेट बुक, ऑल टाइम फेवरेट, लाइक यू कैन रीड इट अगेन एंड अगेन. There are many, Preeto. I cannot pinpoint one, so it will be injustice to my other favorite books. Yeah. There are many. टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, म्यूजिक में कैसा मैम आपने हॉबी डेवलप करी, इंटरेस्ट डेवलप किया, लाइक हु इज योर फेवरेट? मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, गजल सुनना बहुत अच्छा लगता है. Not much into hip hop music, but then the soothing, calming music I really love it, be it instrumental or be it otherwise. लता मंगेशकर जी मेरी बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं, और उनके कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें दिन में मैं कई बार भी रिपीट करके सुनूंगी तो वो मुझे उतने ही अच्छे लगेंगे. एक कहते हैं ना कि एक्चुअली ऑफ कोर्स अभी लता जी तो नहीं है, लेकिन उनकी एक जो लेगेसी है ना, आई एम श्योर कि ये बहुत सालों तक रहने वाली है. कभी नहीं खत्म होने वाली लेगेसी है. She is immortal because उनकी आवाज that will be part of everyone's life. At least हमारी जनरेशन की तो वो रहेगी हमेशा. मैम अगर करंट सिंगर्स की बात करें तो आपको आज के टाइम को कोई अगर सिंगर आपका फेवरेट हो? Arijit Singh is that's everyone's singer. Yeah. So of course रेडियो पे बात कर रहे हैं, और अगर रेडियो पे गानों की बात हो रही है और अगर हम गाने ही नहीं बजाएं तो ऐसा तो हो नहीं सकता. तो मैम आपका फेवरेट गाना जो आप अभी अपने आप भी सुनना चाहती हो और अपने जो अभी हमें लिसनर्स सुन रहे हैं उनको भी सुनाना चाहती हो, आपका फेवरेट कोई?
वैसे तो लता मंगेशकर जी के मुझे सभी गाने पसंद हैं, बट एक दो गाने ऐसे हैं जिनमें उनकी वॉइस वाज लाइक कि दैट इज सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, लिसनिंग टू दैट वॉइस. एक दिल होम होम करे इज अ सॉन्ग, एक ए दिले नारा इज लाइक व्हेन वी लिसन टू हर वॉइस, जब वो गाना आंख बंद करके आप सुनते हो तो आपको ऐसे लगता है यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. सो अब अगर बात करें तो हमने ना एक पॉइंट डिस्कस किया था कि लोकल जो अथॉरिटीज है, लोकल पीपल है, अथॉरिटीज नहीं लोकल पीपल है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम उनको इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे. किंग, आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट दिस. मैं बहुत दिनों से ही यही प्लान कर रही थी और सोच रही थी कि मैं कैसे आम लोगों को, खासकर हमारे यूथ को अपने साथ जोड़ूं, जिससे कि ये जो सारी अवेयरनेस है, चाहे वो नॉट टू यूज़ प्लास्टिक है, चाहे वो प्रमोट ग्रीनरी है, टू प्लांटिंग ट्रीज एंड एवरीथिंग, हम कैसे वो करें. तो इसके लिए मैंने अभी रिसेंटली ही, परसों ही, हमने एक NGOs की मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें कि आई वुड रिक्वेस्ट NGOs कि वो अपने साथ, अपने आम लोगों को साथ, हमारे साथ मिलकर सेंसिटाइज भी करें, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं contribute करने में towards society. Nowadays there are many people who, और वैसे भी पंचकुला is, it's called as a city of, as a place of the retired people who had once contributed a lot to a society as an officer or as a what, जो भी वो काम कर रहे थे उसमें. अब क्योंकि वो if they are healthy and if they are capable, why not contribute to the society. तो मैं उनको, उनके साथ, उनको अपने साथ एसोसिएट करना चाहूँगी. और ये जो हमारी जो पंचकुला की जो सैनिटेशन है, चाहे वो ग्रीनरी है, प्लांटेशन ड्राइव्स हैं, प्लास्टिक फ्री पंचकुला है, और स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है, जितने भी हमारे इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनमें उनके वैल्यूएबल सजेशंस अगर हमें मिलेंगे तो आई थिंक विल बी एबल टू डू मच बेटर. या ऑफ कोर्स, एंड सबके सहयोग से, सबके साथ से एक कहते हैं एक अच्छा होलिस्टिक जो है इम्प्रूवमेंट हो. एब्सोल्युटली. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज आपसे बात करके एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, एज अ लेडी, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील हुआ, एंड आपकी जर्नी सुन के कि कितना हार्डवर्क आपने किया. तो जो लिसनर्स, जो फीमेल लिसनर्स अभी हमें सुन रही हैं, आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे कि लाइफ के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी सारी जो फीमेल लिसनर्स हैं यहाँ पर आज इस शो को सुन रही हैं, कि प्लीज़ लव योर सेल्फ, टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, और बी कॉन्फिडेंट ऑन वॉट यू आर थिंकिंग. विमेन आर बॉर्न एम्पावर्ड. मैं फिर से वापस अपने उस पुराने उस पे आऊँगी कि जब हम पैदा हुए थे, हमें भगवान ने ही एम्पावर्ड भेजा था, और हमें वो कॉन्फिडेंस आज भी हमारे अंदर रहना चाहिए. एंड डोंट लुक फॉर वैलिडेशन ऑलवेज फ्रॉम सबसे. बार बार हम कभी हम मतलब डिसीजन लेते हैं, देन वी लुक फॉर वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम आवर हस्बैंड, फ्रॉम आवर फादर्स, ब्रदर्स, और मे बी एनीबॉडी. तो आपने एक बार कोई चीज़ अगर सोची है, समझी है, यू आर ऑलरेडी वेरी सेंसिटिव. तो कोई भी आप जो डिसीजन लोगे लाइफ में, या जो कोई भी आपने कोई थॉट प्रोसेस आपने अपनाया है, उसके बारे में कॉन्फिडेंस रखिए. दैट इज़ ट्रू, बिकॉज जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी सेंसिटिविटी है, दैट कैन नॉट बी मैच्ड बाय एनीवन. And when you'll start loving yourself, you'll be able to do justice to everybody around you. आप as a mother, as a wife, एज एम्प्लॉई आप ज्यादा अच्छा करेंगे. कहते हैं ना कि मैम औरतों में एक सिक्स्थ सेंस होती है, तो अगर आपने एक डिसीजन बना लिया है ना, आधा डिसीजन तो वहीं पे सही हो जाता है. अगर एक लेडी ने एक डिसीजन बनाया, दिस इज ट्रू फॉर मी प्रीतो. एक इंट्यूशन, एक गट फीलिंग हमेशा आती है कि ये चीज ऐसे की जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा. एंड व्हेनेवर आई हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू डू द थिंग्स ऑन माय ओन वे, दे हैव ऑलवेज प्रूव्ड बेटर. एंड मैं सबसे ये बोलना चाहूंगी कि इट्स फीलिंग राइट, अगर वो सही लग रहा है कर दो, विदाउट एनी सेकंड थॉट कि क्या जाएगा, क्या जाएगा, आगे क्या होने वाला है. जस्ट डू इट. या बिकॉज जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं. रिस्क है तो इश्क है. रिस्क है तो इश्क. सो गाइज, आज का इंटरव्यू हम यही खत्म कर रहे हैं. आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा सुनने में. हमें बहुत ज्यादा मजा आया अभी रिकॉर्ड करने में. मैम कैसा लगा आपको? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? प्रीतो, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कमिंग ऑन शो सच लाइक ये रेडियो शो पर आने का, और बिलीव मी इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू गाइस.
सेम है मैम, बहुत मजा आया आज बात करके, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल भरा मुझे फील हो रहा है। संदीप महेश्वरी के सेशन के बाद लोगों को इतना मोटिवेशन भरा फील नहीं होता होगा जितना मुझे आज हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो गाइस, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप हमें बता सकते हो ऑन दिस नंबर जो कि है 9501095010। हम चल रहे हैं, मिलेंगे आपसे अब हम कल सेम टाइम सेम शो। तब तक के लिए आप सुनते रहो 107.8 FM देश भगत रेडियो।